Yeah, now you are audible. It is better. So, may have I given you any heading like person? No, sir, you have not given us any heading. And Madam has also not sent you. Yes, sir, madam sent me, but you have not given us. So, have you written it somewhere? Sir, I have not written it. Okay. Juhi ji, have you written? No, sir, I have also not read. Written. So, while they both are coming, Manya and Poonam, let me give you one interactive and one idiom. So, did I give you any interactive sentence, Soumya, yesterday? Yes, sir, you gave us no problem, it doesn't matter, never mind, or not at all yesterday. अब हम एक बार जानबूझ के हिंदी कर रहे हैं. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ सर, आपने नो प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर, नेवर माइंड और नॉट एट ऑल इंटरेक्टिव सेंटेंस दिए थे. Now I'm asking the similar question to Juhi ji. Juhi ji, did I give you any idiom yesterday? Yes, sir, you gave idiom. You gave like dress like idiom yesterday. Okay. Now again I'm asking deliberately both the questions to Soumya. Soumya, did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, sir, you gave me one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ सर, आपने कल एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था. Which interactive sentence did I give you yesterday? Sir, you gave me uh, not at all yesterday. Okay, मैंने कल आपको कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? सर, कल आपने not at all दिया था. Now you ask two questions to Juhi ji, like me, about idiom. Juhi didi, did I give you any idiom yesterday? Yes, you gave one idiom yesterday. Which idiom did I give you yesterday? You gave like draws like idiom yesterday. So should I complete the process? Complete. जूही दीदी, क्या मैंने कल आपको कोई इडियम दी थी? हाँ, कल आपने मुझे एक इडियम दी थी. मैंने कल आपको कौन सी इडियम दी थी? कल आपने एक थैली एक ही थैली के चट्टे बट्टे इडियम दी थी. लाइक ड्रॉज लाइक. Uh, Soumya, have you got this interactive sentence? यस सर. सो देयर यू आर. अब आए ना तुम लाइन पर. Okay. Juhi ji, have you got this interactive sentence? Yes, sir, I have got that interactive sentence. क्या आपको ये वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस मिला है? हाँ, मुझे वह इंटरेक्टिव सेंटेंस मिला है. Please ask the same question to Soumya. सौम्या, uh, did you have that interactive sentence? सॉरी दीदी. Did you? No problem. Soumya will ask you. Okay, sir. Thank you so much. जूही दीदी, हैव यू गॉट दिस इंटरेक्टिव सेंटेंस? Yes, Soumya, I have got this interactive sentence. Did you have got this interactive sentence? Right ना? ऐसे ही पूछेंगे ना क्वेश्चन. Did you have got? सॉरी सॉरी.
Did you have? Sorry. Did So may you ask me? I will confusion? ask. Okay. So may you ask me? I will ask her. Sir, have you got this interactive sentence? Yes, I have got this interactive sentence. क्या आपको ये इंटरेक्टिव सेंटेंस मिल गया है? हाँ, मुझे यह इंटरेक्टिव सेंटेंस मिल गया है. Yuhi ji, have you got this interactive sentence? Yes, I have got this interactive sentence. क्या आपको ये इंटरेक्टिव सेंटेंस मिल गया है? हाँ, मुझे यह इंटरेक्टिव सेंटेंस मिल गया है. सौम्या, have you got that interactive sentence? Yes, I have got that interactive sentence. क्या वह इंटरेक्टिव सेंटेंस तुम्हें मिल गया है? हाँ, वह इंटरेक्टिव सेंटेंस मुझे मिल गया है. सौम्या, तुम्हें तो ये हिंदी सुन के अजीब नहीं लगा होगा क्योंकि ये जबलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है हिंदी ऐसा. लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं प्रचलित है. और जब हम ये सेंटेंस देखते हैं तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या अंग्रेज ऐसी हिंदी बोलते होंगे? अब आए ना तुम लाइन पर. तो फिर हम उनको समझाते नहीं बेटा, ये तो हमने वो भाव या वो एक्सप्रेशन लिया है जो जबलपुर में बोला जाता है इसलिए. और इसको तुम कभी किसी बड़े से नहीं बोलना, अपने से जो रिस्पेक्टेड पर्सन उससे कभी मत बोलो. लेकिन इसका जो हम किताबी अगर अर्थ निकाल के चले तो वो होता है Juhi ji, is it visible to you, no? Yes, sir, that is visible to me. I अब आई especially asked to Juhi ji because the width of iPhone is little less in comparison of Android. Android shows the same as my mobile is showing. Android shows the same width and length, but iPhone shows partially cut. That's why I'm asking. So this is the bookish Hindi of Alna Baat Tumhari Juhi ji, what is the subject in this sentence? So there you. I don't know, sir, exact. No problem. You can ask this question to Soumya. Soumya, can I ask the subject in this sentence? Sorry, दीदी. What is the subject in this sentence? Sorry. You is the subject in this sentence. Correct. Now Soumya, you ask. What is the helping verb in this sentence? Do not ask. Same question. Same. अच्छा, okay. What is the subject in this sentence, दीदी? You is the subject in this sentence, Soumya. दोस्तों, इस सेंटेंस को हमेशा ऐसा सेम ही तो नहीं बोला जाएगा. 90% तो यही चलता है, हम सामने वाले से बोलते हैं. सो देयर यू आर. अब आई ना बात तुम्हारी समझ में. लेकिन अगर हमें इसमें किसी और के लिए बोलना है, अर्थात सब्जेक्ट बदलना है, तो ट्राई टू डू इट. अब देयर आर ओनली 2 पीपल, यू 2, तो हम 3-4 एक एक करके 2-2 3-3 सेंटेंस बना लें तो इट विल बी कॉम्प्रिहेंडेड. Sir, I am ready. So there, they are. अब आए ना वे लाइन पे. एब्सोल्युटली करेक्ट.
So there they are. अब आई ना बात उनकी समझ में, अब आए ना अगली लाइन पे। It was easy subject. Soumya. Now Juhiji will also change something. And meanwhile, Soumya, think one more sentence. सर हेल्पिंग वर्ब आर ही रहेगी, मतलब अगर सिंगुलर ऐसे रखते हैं, सो No देयर ही problem. इज। Soumya will make one more sentence. ओके। I could also make one sentence, but I don't want to make. So there Salman Khan is. अब आई ना सलमान खान, अब आया ना सलमान खान लाइन पर। Yes, absolutely right. So there Sallu Bhaiya is. अब सो आई ना बात सल्लू भैया की समझ में। हाँ जवी जी इरशाद। सर मैं वही बोल रही थी, सो देयर ही इज। अब Correct. आई ना बात उसकी समझ में, ऐसा ना? Correct. Now Soumya will make one more sentence, then Jahiji will also make one more. At least three sentences you will have to make. So there my neighbors are. अब Yes. आए ना मेरे पड़ोसी की बात समझ में, पड़ोसी को बात समझ में। पड़ोसी को नहीं। पड़ोसी की बात समझ में। पड़ोसियों को होगा शायद। Yes, पड़ोसी, absolutely. पड़ोसियों को समझ में, है ना? नेबर्स। Absolutely right. There is a topic for you. Whenever थैंक you यू come सर। to write थैंक it, यू सर। you can note down the topics, and whenever you come to Jabalpur, come here and take. सो देयर माय फ्रेंड्स आर। Yes. अब आई ना बात समझ में, अब आई ना बात समझ में मेरे दोस्त, अब आई ना बात मेरे दोस्तों के समझ में, ऐसा। अब आई ना मेरे दोस्तों को बात समझ में, दोस्तों को बात समझ, यस सर। या अब आए ना मेरे दोस्त लाइन पर, वो ज्यादा आसान होता है। नागपुर में ये बोला जाता है या नहीं? यस सर, समटाइम्स। मीन्स एक्चुअली बॉयज के बीच में तो ये बड़ा फेमस रहता है, लेकिन मम्मी लोगों को या महिलाओं को आइडिया नहीं होता। सुबह कॉलेज जाती होगी तो उसको भी सुनने मिलता होगा, लड़कियां भी बोलती हैं यूज करती। चलो एक अव्यवहारिक सेंटेंस बना के बताओ, कौन बनाता है? वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन यहाँ आई सब्जेक्ट रखी। So there I am. यस, करेक्ट। अब आई ना मैं लाइन पर। हाँ, अब ये हमने अभ्यास के लिए इसलिए बनवा के दिखाया कि वैसे तो हम कभी बोलते नहीं, बहुत कम ही ऐसा अवसर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही बचा था, ठीक है, बी जब प्रेजेंट में आता है तो इज एम आर के रूप में आता है, तो आर तो यहाँ मौजूद है, इस लगा के अपन ने देख लिया, आर दो तीन बार लगा लिया, इस दो तीन बार लग गया, एक बचा था वो अपन ने देख लिया। चलिए अब हम इसके साथ का जो इडियम है वो देखते हैं। सोम्या जी से इसके बारे में पूछो। Juhi Didi, have you written the first one? यस सौम्या, आई हैव रिटन द फर्स्ट वन। Should I erase that? यस, यू शुड इरेज दैट। अब आगे का जो जी आप दो सवाल पूछे। सौम्या, हैव यू रिटन सेकेंड वन? हैव यू रिटन द सेकेंड वन? Yes, I have written the second one. शुड आई इरेज दैट? Yes, you should erase that.
चलो इसका पूछ लेते हैं। हम जूही जी से पूछते हैं, फिर जूही जी आपसे पूछेंगे। हैव यू गॉट दिस इडियम? आपको यस में आंसर देना है, मिला हो या यस सर, आई हैव गॉट दिस इडियम। कि आपको ये इडियम मिल गया है? हाँ, मुझे यह इडियम मिल गया है। सौम्या, हैव यू गॉट दैट इडियम? Yes, I have got that idiom. Complete the process, दीदी। क्या यह इडियम तुम्हें मिल गया है? हाँ, वह idiom मुझे मिल गया है। अब अगला सवाल क्या होना चाहिए? सोनिया तुम पूछे जूही जी से। जूही दीदी, can you guess the meaning of this idiom? Yes, I can. I can guess the meaning of that idiom. What is it? As you sow, so जैसा बोगे वैसा काटोगे। करेक्ट। नाउ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। Sir, what is the meaning of that idiom? ये नहीं, वैसे Can पूछिए। Can you guess the meaning of that idiom? Yes, of course. The meaning of this idiom is जैसा बोगे वैसा काटोगे. This is the correct answer. Soumya, can you guess the meaning of this idiom? Yes, sir. The meaning of this idiom is जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छे से अनुवाद की जगह हम थोड़ा सा यहाँ बदल दे रहे हैं दोस्तों। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। अब एक ट्राई आउट करते हैं। इसका जवाब मतलब ये प्रश्न हम कम बार करते हैं, लेकिन इसकी आदत होना चाहिए। जूही जी ध्यान से सुनिएगा। Soumya, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple tense. Now you ask the same question to Juhi. Which chapter is this sentence related, Didi? This sentence is related to. Exactly, I don't know. Okay. Now you ask me. Which chapter is this sentence related, sir? This sentence is having two parts. First part is related to present simple and second part is related to future simple. Soumya, which chapter is this sentence related? So this sentence is having two parts. First one is related to present simple tense, and second one is related to future simple tense. Juhi Didi, which chapter is this sentence related? This sentence having two parts. First part is present simple and second is future simple tense. First part is related to present simple and second part is future simple. Helping verb was missing. I'm asking to Soumya again. And if your CC is not on, please switch on your CC. Soumya, which chapter is this sentence related? So this sentence is having two parts. First one is related to present simple tense, and second one is related to future simple tense. Juhi Didi, No. which chapter is this sentence related?
This sentence is having two parts. First part is related to present simple and second part is related to future simple. Can you do little bit creativity with this idiom? Okay, firstly I am doing. I said to my friend, yaar, do not do it. But he did it. He got lost. Then I said, as you sow, so shall you reap. मैंने अपने दोस्त से कहा ऐसा मत करो, लेकिन उसने किया, उसको घाटा हो गया, तो मैंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे. कुछ व्याकरण की गलतियां हो तो उसकी चिंता मत करना. Do not worry about grammatical mistakes. Actually, creativity develops your right brain. One more sentence. Thakur said to Gabbar, as you sow, so shall you reap. ठाकुर ने गब्बर से कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे. Simple sentence, small. I'm ready, sir. There was a group of thieves. They stole the things from the houses, from so many houses, and one day police arrested them. So it is said that as you sow, so shall you reap. Correct. Should I complete the process? Yes, you should. एक चोरों का ग्रुप था और वो हर जगह चोरियां करते थे. तो एक दिन वो पकड़ा गए, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी. इस तरह के मुहावरे हमें कहीं कहीं देखने मिलते हैं. किसी बैच में जब हमने दिया होगा इसके पहले कभी, तो कोई हमारा स्टूडेंट ये एक पेपर फाड़ के लाया. हम आपको कैमरा स्विच करके दिखाते हैं, उसमें अच्छे से दिख जाएगा. Just a minute, wait. Please read, Soumya.
You shall reap what you sow. जूही जी। You shall reap what you sow. तो मुहावरे आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, भले ही उनका रूप थोड़ा सा, उनकी ग्रामर बदली हो, लेकिन वो आपको मैगजीन्स में, टीवी में, न्यूज़पेपर में मिलेंगे। और Sir, इस I तरह। okay, हाँ। sir. I'm हाँ ready. बोलो। हाँ। I learned that story. As you sow, so shall you reap. मैंने उस कहानी से सीखा, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करोगे वैसा भरो। यहाँ पे फ्रॉम नाम का प्रिपोजिशन लगेगा, तो वो ओके सर। I learned from that story. यस। Okay. My mother always says, be honest because as you sow, so shall you reap. मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि ईमानदार रहो क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, या जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब पिछले कुछ दिनों में जब से हम ये बैच को रीस्टार्ट किया है, सौम्या तुमने भी ध्यान दिया होगा, जूही जी तुमने तो अभी 2 दिन 3 दिन से किया है, कि इंटरेक्टिव रीडियम में कुछ गर्भ में छिपी हुई चीजें रहती हैं जो हम उस समय आपको लिखवाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि इस ईडियम में हमेशा मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लेता हूँ, कि मैं सीधे सीधे लिखवाता जा रहा हूँ, आप सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं, तो इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। तो मैं तुम लोग दोनों को फील्ड वर्क दे रहा हूँ, आप उसे व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं। और फिर कल मैं यहाँ फिजिकल बैच में, तो मैं जब पूछता हूँ हाँ कौन कौन लेकर आया, तो बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, फिर उन्हीं में से एक एक को बुला के मैं बोर्ड पे लिखवाता भी हूँ। तो फील्ड वर्क ये है कि इस इडियम में दो क्रियाएं दिखाई दे रही, वैसे तो आपको मिल गई होंगी क्योंकि राइटिंग वर्क आपको मिला है, लेकिन आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म व्हाट्सएप में शेयर करना है। आप देख के अपनी राइटिंग में टाइप करके शेयर कीजिएगा। 2 क्रियाएं दिख रही हैं। बताऊं मैं, जूही जी दिख रही है ना 2 क्रियाएं कि नहीं? चलो सौम्या बताएगी। सर फर्स्ट वर्ब इज सो एंड सेकंड वर्ब इज रीप। यस। तो इसको आपको व्हाट्सएप में वैसे लिख के भेजना, आप चाहो तो अपने किसी पेज पे लिख लेना, व्हाट्सएप में वैसा ना है, पूरा नहीं आता है, तो पेज पे लिखिएगा और उसकी फोटो लेके भेज सकते, ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ पेज पे ही लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ ये भी चेक करूँगा कि इतने दिनों से आप लिख रहे हैं, तो आप लिखते समय बिल्कुल उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको लिख के भेज पाते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों को दोनों को से चुन लेता हूँ। सौम्या तुम कौन सी क्रिया की डिटेल भेजोगी? सर सो। तो बची दीप, उसके डिटेल जूही जी आप किसी भी पेज पे पेन से अपनी राइटिंग में लिख के, डिक्शनरी से देख के या गूगल से देख के, जैसा हम लिखवाते हैं वर्ब, जब भी हम ओके लिखवाते सर। हैं जैसा लिख कर आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप करना है। फिर कल हम उस पर सेंटेंस भी बनाएंगे। सर अब सो आज मीन्स बो ना। वो सब आपको ढूंढना है, इसीलिए तो हम चाहते तो 2 मिनट में पूरे डिटेल लिखवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आज हमें चैप्टर का पूरा याद था, हम तैयारी के साथ आए थे कि वो चैप्टर देंगे, लेकिन 2 guys आर एब्सेंट, तो हम लोग कल उसको देखेंगे। आज हम एक इंटरेक्टिव और आपको देते हैं।
तब तक पहले जूही जी ऊपर के बारे में पूछे सौम्या से, फिर सौम्या इसके बारे में पूछे। Soumya should. दो सवाल करना है। चलो जूही जी थोड़ा सा मिस कर दी, सौम्या तुम ही स्टार्ट कर। Juhi Didi, have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase this? Yes, you should erase this. Soumya, have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase this? Yes, you should erase this. Soumya, is it visible to you? Yes, sir, it is visible. Ask the same question to Juhi ji. Juhi Didi, is it visible to you? No, it is not visible to me. Partially cut, actually. Yes, I was having doubt. Now, No, sir. Yes. ये 3 चरणों में है, तो हम पहले पूरा ही लिख देते हैं। Is it visible, Juhi ji? Yes, sir. It is visible. Now partially cut. थोड़ा सा cut. Now, No, sir. थोड़ा कट रहा है अभी भी. Partially cut. now, Yeah. Yeah. Now it is completely visible. uh, have you got? You must have got it, right? So, Juhi ji, can you tell me the Hindi meaning of anyway? I can't remember. Okay, you ask Soumya. Soumya, can you guess the meaning of that sentence? Anyway means halaki. Okay, you both don't know. Is Hindi visible to you, Soumya? Yes, sir, it is visible. Juhi Didi, is it visible to you? Yes, it is visible to me, Soumya. दोस्तों खैर जो शब्द है वो उर्दू का है, बहरहाल भी उर्दू का है, हम इसका प्रयोग जानते हैं। Soumya, is anybody calling you? You can attend if you want, and we can conclude. If we can conclude also if you want, we can conclude the class. जूही जी, इसमें हम ने जो भेजा होगा, जब आपको मिला होगा, तो इसमें तीन स्तर हैं। अभी हम यहाँ पे हमने स्लैश लगाया, ऑब्लिक, बटे का निशान। ये थोड़ा सा पुराना इंटरेक्टिव सेंटेंस है, इसके बाद हम नया वाला लिखेंगे, फिर एक छोटा सा वाक्य जो उसके साथ ज़्यादा बोला जाता है, दोनों साथ में बोले जाते हैं, वो भी लिखेंगे। लेकिन पहले हम इसमें क्रिएटिविटी करते हैं थोड़ी सी। ये बहुत यूजफुल सेंटेंस है और आपको इसके साथ कुछ आगे जोड़ के बताना है। सौम्या को कोई आवाज दे रहा था, तो शायद she shut the window. If she comes, she can start. Anyways, go ahead. Correct.
अरे जब तक सौम्या नहीं आ रही, एक व्यक्तिगत सवाल मैं करता हूँ आपसे। आपके आप एंड्रॉयड, यू डोंट हैव एंड्रॉयड फोन? नो सर। अच्छा, घर में किसी का भी नहीं है, किसी के पास? नो सर, मेरी डॉटर का है बट उसकी भी क्लासेस रहती हैं सर। तो क्या इसके जैसे कई बार होता है जैसे कि घर में दो फोन भी होते हैं, जैसे मेरे पास दो है। एक मैं पुराना जो था मैं उसको गेम खेलने के लिए यूज करता हूँ। नो सर, पुराना मेरा एंड्रॉयड ही था बट वो खराब हो गया था तो। चलिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। एनीवे, एप्पल विल डू। खैर, एप्पल चलेगा। इफ यू डोंट हैव एंड्रॉइड फोन, एप्पल विल डू। सौम्या, आई थिंक शी हैज गॉन। हम उससे बोलते भी जा रहे थे लेकिन किसी ने आवाज दी तो ये चली गई। तो हम आज इसको विराम दे दें क्या? फिर मजा नहीं आएगा। अब हम यहीं से कल फिर से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।